Hello students, very good evening and welcome in Expert Brain Coaching Center. I am back with the new videos. Today we are going to discuss about solenoid. आज हम लोग पढ़ेंगे solenoid के बारे में. Okay, and it is the lecture number 5th of moving charges and magnetism. ये moving charges और magnetism का lecture number 5th है. हम लोग 4 lecture पहले कर चुके हैं. ठीक है. Before starting the lecture, I would like to recall the previous topics which we have discussed in this chapter till now, and it is the best way to connect the class. We had started with magnetic field. Magnetic field, how magnetic field is produced. Okay. After that, we read about Biot-Savart law. Biot-Savart law gives the formula to calculate magnetic field for elemental current. After that, we learn how to calculate magnetic field due to finite state current carrying conductor. Okay. After that, we have calculated magnetic field due to circular current carrying wire. At the center, we have calculated magnetic field, and in the case of semicircle also, we have calculated magnetic field at the center and in quadrant as well as in arc. Okay, and after that, we read about how to calculate magnetic field on the axis of circular current carrying loop. Okay, and in the last lecture, we have read about Ampere's circuital law. If any one of you really wants to read these topics, do one thing. Go to YouTube search box. Okay, search any topic such as Biot-Savart law by Expert Brain Coaching Center. You will get the videos very easily. Okay, and 3 chapters of class 12 physics, that is electric charges and fields and electrostatic potential and capacitance and current electricity. These all 3 chapters of class 12 physics are already available upon this channel. Okay, you can go the playlist of Expert Brain Coaching Center. You will get the videos by separate folder. You will get the videos in separate folder for different chapters. Okay, if any one of you wants to read, then you can go and read from there. Okay, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सोलोनॉइड. सोलोनॉइड में ये सीखेंगे जो क्लास 12 के अंदर में हम लोगों का है, जो बोर्ड में सिर्फ कवर होता है, हाउ टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ. एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करते हुए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे क्लास 12 फिजिक्स के सिलेबस में है. बट फॉर जेईई मेंस एंड नीट, इफ यू आर एस्पायरेंट्स ऑफ जेईई मेंस एंड नीट, देन यू शुड वॉच द लेक्चर फ्रॉम द स्टार्टिंग. जो एस्पायरेंट्स हैं इसके जेईई के और नीट के, उनको वीडियो स्टार्टिंग से देखना चाहिए, और जो सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ना चाहते हैं वो वीडियो के लास्ट में चले जाइए, जहां पे हमने सोलेनॉइड को एम्पियर सर्किटल लॉ के मेथड से डिराइव किया है. ओके, लेकिन जो मेंस के स्टूडेंट्स हैं, नीट के स्टूडेंट्स हैं, उसके लिए मैं बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, जनरल वे लेके चलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जनरेट होती है. ओके रहिए. ओके, बने रहिए इस चैनल के साथ, आपका सारा कॉन्सेप्ट सोलेनॉइड से रिलेटेड आज क्लियर हो जाएगा. ओके, तो सबसे पहले मैं बात कर लूं कि व्हाट इज कॉल्ड सोलेनॉइड. सोलेनॉइड होता क्या है. देखिए, द सोलेनॉइड is a long coil containing a large number of copper wire या any wire. जो हमारा सोलेनॉइड होता है, एक लॉन्ग कॉइल होता है, उसके अंदर में ढेर सारे टर्न्स होते हैं. ढेर सारे क्या होते हैं? टर्न्स होते हैं. अब देखिए, जो हमारे टर्न्स होते हैं वो हेलिकल स्प्रिंग के शेप में होते हैं. जो हमारे टर्न्स होते हैं वो हेलिकल स्प्रिंग के शेप में होते हैं, इसमें में होते हैं. इसको बोलते हैं टर्न. नंबर ऑफ टर्न बहुत ज्यादा होते हैं. ठीक है. अब इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं एक बैटरी के साथ. इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं एक बैटरी के साथ, सो दैट करंट कैन फ्लो फ्रॉम इट वेरी इजीली. अब जो इसका शेप होता है वो होता है हेलिकल स्प्रिंग के फॉर्म में. ठीक है. और जो हर एक टर्न्स का जो सेंटर होता है वो कैसा होता है? वो कॉन्सेंट्रिक सेल्स होता है. ये कैसा होता है? कॉन्सेंट्रिक सेल्स की तरह होता है. ये कॉन्सेंट्रिक सेल्स एक ही एक्सिस पे सारे की जो सेंटर है वो लाई करते हैं. ठीक है. अब देखो क्या होता है कि जो हमारे टर्न्स होते हैं वो डायरेक्टली सोलेनॉइड के अंदर में इस्तेमाल नहीं होते हैं. अब हम लोग क्या करते हैं, उसके सपोर्ट के लिए वी यूज ए बेस. हम लोग एक बेस यूज करते हैं. ठीक है. जैसे हमारा ये कोई एक नॉन कंडक्टर, जिसके ऊपर मैं एक वायर को रैप कर दूं, इसके ऊपर मैंने वायर को रैप कर दिया. जो वायर को मैं रैप कर रहा हूं वो हेलिकल स्प्रिंग के फॉर्म में है.
और जो मैं जिसके ऊपर मैं रैप कर रहा हूं वो नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए, जो मैंने इस डायग्राम में दिखाया है। देखो ये हमारा हेलिकल स्प्रिंग के फॉर्म में यहां दिखा दिया मैंने, ठीक है। अब ये जो हमारा ये हमारा जो बेस है, ये हमारा नॉन कंडक्टर है बेस, ये हमारा क्या है, नॉन कंडक्टर है। और जो वायर होना चाहिए, जो वायर हम लोग यूज करते हैं जिसके ऊपर में हम लोग इंसुलेट करते हैं, वायर शुड बी इंसुलेटेड। जो वायर हम लोग एक नॉन कंडक्टर के ऊपर में रैप करते हैं दैट शुड बी इंसुलेटेड, ठीक है, वो इंसुलेटेड होना चाहिए। समझ आ रही बात, आ रही है। अब देखो कि पहले ये समझो कि सोलेनोइड को मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक्स के अंदर में क्यों पढ़ा जाता है। सोलेनोइड को मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक्स के अंदर में क्यों पढ़ा जाता है, तो देखो व्हेन सोलेनोइड सस्पेंडेड फ्रीली, जब सोलेनोइड को हम लोग फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं, देन इट रेस्ट्स, या फिर मैं कहूं ये रुक जाता है, देन इट रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये जाके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुक जाता है। कब रुकता है, व्हेन करंट इज ऑन, जब स्विच ऑन कर दिया, जब करंट फ्लो करता है, तो जब सोलेनोइड को हम लोग फ्रीली छोड़ देते हैं तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जाके रेस्ट करता है, ठीक है। तो देखो मैंने यहां पे क्या लिखा है, when solenoid suspended freely then it rests in north south direction only if current is on। जब करंट ऑन होता है तो जो हमारा सोलेनोइड होता है वो जाके कहां पे रेस्ट करता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो इससे क्या पता चलता है, करंट कैरिंग सोलेनोइड बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। इसका मतलब ये है कि जब वो सोलेनोइड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाकर रेस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है इट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, इसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। क्लियर है ये, इसीलिए हम लोग इसको मैग्नेटिक्स के अंदर में पढ़ते हैं। क्लियर है। अब देखो जो मैंने ये नॉन कंडक्टर लिया या फिर मैं बोलूं इसका जो स्प्रिंग है, इसका जो हमारा रेडियस है, उसका रेडियस मैंने मान लिया कैपिटल आर, मैंने सपोज रेडियस क्या कर लिया, कैपिटल आर। अब ये देखो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि सोलेनोइड होता क्या है। आप क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो, क्या है, लॉन्ग कॉइल होता है, बहुत बड़ा कॉइल होता है, और वो क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। जैसे मैं एक वायर लूं, बहुत बड़ा वायर लूं और इस नॉन कंडक्टर ऊपर मैं रैप कर दूं, ठीक है, फिर उसको मैं कनेक्ट कर दूं मैं एक सेल से, उसके अंदर मैं करंट दौड़ाऊं, ठीक है। अब ये देखो कि ये हेलिकल स्प्रिंग के फॉर्म में होता है, इसके सपोर्ट के लिए हम लोग क्या दे देते हैं, बेस के रूप में एक नॉन कंडक्टर दे देते हैं जिसके ऊपर में वायर हमारा रैप होता है, ठीक है। अब सवाल ये होता है कि सर जब ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, आई हैव डिक्टेटेड आल्सो कि करंट कैरिंग सोलेनोइड बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। जब किसी सोलेनोइड के अंदर से करंट फ्लो करता है तो ये किसकी तरह बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट देन इट विल हैव मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर कोई ऑब्जेक्ट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है तो उसके पास में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। तो चलिए मैं देखता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सोलेनोइड की कैसे बनेगी। और सोलेनोइड हमें दो तरह का पढ़ना है, एक हमें पढ़ना है फिनाइट लेंथ का, एक लेंथ होगी, एक हमें पढ़ना है इनफाइनाइट लेंथ का। तो जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रा करेंगे इट विल बी ऑफ फिनाइट लेंथ। जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रा करने जा रहे हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी होगी वो किसके लिए होगी, फिनाइट लेंथ वाले सोलेनोइड के लिए होगी। क्लियर है। अब देखो जो मैंने आपको ये दिखाया, ये हेलिकल स्प्रिंग, ये अगर ये स्प्रिंग है इस तरीके से, अगर मैं इस स्प्रिंग को ऐसे काट दूं, इस स्प्रिंग को ऐसे मैं काट दूं, तो हमारे पास दो तरह के, ऐसा मेरे को लगेगा कि करंट यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां आके खत्म हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो, यहां खत्म हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो, यहां हमारा खत्म हो रहा है। तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी, देखो मैं सोलेनोइड कैसे बना रहा हूं, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल फील कीजिएगा इसको। एज आई यूजुअली से, रीड द फिजिक्स बाय क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट, देन यू विल फॉल इन लव विद फिजिक्स, ठीक है। देखो मैं सोलेनोइड कनेक्ट कर रहा हूं, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं 2D में ड्रा करने की कोशिश कर रहा हूं इस फिगर को। मैंने बोला हमारे पास ये वायर लपेटा हुआ है, रैप किया हुआ है, मैंने इसको काट दिया। जब ये काट दिया, दो पार्टे पड़ गया, दो पार्टे पड़ गया ना, तो करंट यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां के इंसर्ट हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ऊपर वाले में देखो मैं क्या दिखा रहा हूं, समझिएगा इस बात को, ये डॉट दिखा रहा हूं। डॉट का मतलब क्या हो रहा है कि करंट यहां से बाहर आ रहा है। डॉट का मतलब ये है कि करंट यहां से बाहर आ रहा है, और क्रॉस का मतलब क्या है, करंट यहां पे इंसर्ट हो रहा है। इस बात को मैं अभी फील कराने की कोशिश करूंगा आपको, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। देखो कि जब मैंने काट दिया, अब ये देखो कि इसके अंदर में यहां से करंट निकलेगा और यहां के इंसर्ट कर जाएगा, यहां से करंट निकलेगा, यहां के इंसर्ट कर जाएगा। अब सवाल ये है कि जब करंट यहां निकल रहा है, यहां से निकल रहा है और यहां इंसर्ट हो रहा है,
यहां से निकल रहा है, बाहर आ रहा है, यहां इंसर्ट हो रहा है। अगर मैं लगाऊं डायरेक्शन को पता करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, राइट हैंड पाम रूल। करंट बाहर से निकला, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है उस डायरेक्शन में हम लोग थंब को पुट अप करते हैं। थंब को पुट अप किया, ये हमारा क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसकी डायरेक्शन है ये, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो भैया ये हमारा क्या निकल रहा है, करंट निकल रहा है, ठीक है। और जिधर हमारा इसका करंट का डायरेक्शन है उधर आप थंब रखो, और जिधर कर्ल फिंगर जाएगी वो क्या देगी हम लोगों को, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा कुछ डायरेक्शन में होगा। ये हमारी एक्सिस में ड्रा कर दिया मैंने, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो कि इसके अराउंड हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इसके अराउंड बोलो। तो देखो अगर हमारा इस तरीके से फॉलो करेगी इस डायरेक्शन में, ये टच नहीं करेगी, इस डायरेक्शन में मूव करती रहेगी चारों तरफ, ठीक है। मुझसे अगर इंटरसेक्ट कर भी जा रही है ना तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ये घूमती रहेगी डायरेक्शन में, ठीक है। समझ आ रही बात, नहीं आ रही है? अगर हमसे इंटरसेक्ट कर भी जा रही है तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी, याद रखिए इस बात को, ठीक है। समझ आ रही बात, नहीं आ रही है? बोलिए। तो ये डायरेक्शन हमारी होगी, ये हमारी डायरेक्शन किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हमारी होगी। अब देखो इस वाले में, क्रॉस वाले में आओ। क्रॉस वाले में हमारी कहां जा रही है, करंट कहां जा रहा है, करंट इंसर्ट हो रहा है, अंदर जा रहा है। तो जिधर करंट जा रहा है उधर रखो किसका डायरेक्शन, थंब का डायरेक्शन। मैं थंब का डायरेक्शन रखा, ये हमारा डायरेक्शन किसका होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कुछ कैसा होगा, ऐसा होगा, इस तरीके से होगा। इधर उल्टा डायरेक्शन रोटेट करेगी, ये दूसरे को अपोजिट है, ठीक है। समझ आ रहा है बात, नहीं आ रहा है? फिर से मैं फिलअप करवा रहा हूं, मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दिखा रहा हूं सोलेनॉइड के। ये हेलिकल के शेप में था तो मैंने बीच से काट दिया। करंट यहां से ओरिजिनेट हो रहा है, यहां से निकल रहा है बाहर, और यहां की अंदर जा रहा है, यहां इंसर्ट हो रहा है। तो जब करंट कहीं से बाहर आता है तो हम लोग क्या दिखाते हैं, डॉट से दिखाते हैं। इसका मतलब क्या, ऊपर में दिखा दिया डॉट कि करंट यहां से बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है। तो जिस डायरेक्शन में करंट जाएगा उस डायरेक्शन में थंब को शो कीजिए, ठीक है। और उसके बाद कर्ल फिंगर को मोड़िए, जिस डायरेक्शन में हमारी कर्ल फिंगर होगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो देखो फिर बाद में जब डायरेक्शन ऐसे बनता है, इस तरीके से बनता है ग्राफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का सोलेनॉइड केस में, ऐसे बनता है ग्राफ। जब हम लोग लेते हैं किसके, फिनाइट लेंथ का सोलेनॉइड लेंगे तब हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। इसका मतलब यह है ऊपर से करंट बाहर आ रहा है, ऊपर वाले से करंट बाहर आ रहा है, और नीचे वाले में जो करंट है अंदर जा रहा है। इस वाले से करंट बाहर जा रहा है और इस वाले में करंट अंदर आ रहा है। जिस डायरेक्शन में करंट फॉलो कर रहा है उस डायरेक्शन में आप थंब को पुट अप करो, और जिधर हमारी कर्ल फिंगर होगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? आपको सोलेनॉइड समझ में आ गया, बेसिक कॉन्सेप्ट। ये मैग्नेटिज्म में क्यों इस्तेमाल होता है ये भी आपको समझ में आ गया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से ड्रा होती है, किसके लिए, फिनाइट लेंथ का जब सोलेनॉइड होगा तब, ठीक है। ये बेसिक आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, वी विल कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। सोलेनॉइड की वजह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एक कैलकुलेट करेंगे इनसाइड द सोलेनॉइड ऑन इट्स एक्सिस, सोलेनॉइड के अंदर और इसके एक्सिस पे हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को सोलेनॉइड के अंदर में। और जो सोलेनॉइड होगा वो कैसा होगा, फिनाइट लेंथ का होगा, ठीक है। आप इसको पॉज करके नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको हम लोग पहले डिराइव करने की कोशिश करेंगे। जो हम लोगों का बायो-सवार्ट लॉ वाला रूल था, जनरल रूल था, उसके बाद हम एम्पियर फेक्टर लॉ से भी करेंगे। पर जेईई मेंस और नीट के जो स्टूडेंट है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो एक चीज मैं बताऊं, जब सोलेनॉइड में जब ढेर सारे टर्न्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टर्न्स को एन। एन हमारा क्या है, एन टर्न्स इन सोलेनॉइड, मतलब 50, 100, 1000, 2000 कितने टर्न वायर के लगे हुए हैं। अब हम लोग को अगर निकालना है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ये होता है n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन L। n होता है जितना हमारा टर्न्स है, n का मतलब होता है पर यूनिट लेंथ के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, इसका इस्तेमाल होगा। देखो मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रा किया सोलेनॉइड की। अभी मैंने बताया आपको कि यहां से करंट बाहर जा रहा है, उसको डॉट दिखा दिया मैंने, और नीचे में करंट का और इंसर्ट हो रहा है, क्लियर है। अब हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इसके एक्सिस पे, इनसाइड सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर में, इनसाइड ऑन इट्स एक्सिस, एक्सिस पे कोई पॉइंट P है, P पॉइंट पे हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। सोलेनॉइड के अंदर कोई पॉइंट P है, वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट।
तो देखो कि इसके पास में क्या होंगे स्टूडेंट का एन नंबर ऑफ बहुत सारे टर्न्स होंगे, है ना। अभी तो हम लोग फिनाइट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, बहुत सारे होंगे 100 200 5000 लाख कितने टर्न्स भी हो सकते हैं उसके अंदर में, ठीक है। तो अब ये देखो कि हम लोग क्या करेंगे, जब ढेर सारे टर्न्स होते हैं तो कोई एक छोटा पार्ट हम लोग लेते हैं, छोटे पार्ट के लिए हम लोग निकाल लेंगे मैग्नेटिक फील्ड और उसको हम लोग फिर इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कहने का मतलब सर, छोटा हम लोग एलिमेंटल पार्ट ले लेंगे, क्या लेंगे, एलिमेंटल रिंग ले लेंगे। ये क्या है, देखो जैसे हेलिकल जो रिंग बनाया मैंने ऐसे बनाया, ये एक रिंगी का शेप तो है, ठीक है। तो मैं क्या बोला कि मैं बोल रहा हूं कि एक dx लेंथ dx जो है उसका ब्रेथ का एक मैंने एलिमेंटल रिंग ले लिया, एलिमेंटल रिंग। क्यों सर, एलिमेंटल रिंग की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, जब छोटे पार्ट के लिए निकल जाएगी तो वी विल इंटीग्रेट करके हम लोग फिर फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने बायो सावर्ट लॉ यूज करके रिंग के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी एक्सिस पे। देखो मैं यहां पे लिखा हूं कि फॉर रिंग के लिए क्या थी, हमारा मैग्नेटिक फील्ड निकालने फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3/2। ये रिंग का केस था जब हम लोग रिंग में उसके एक्सिस पे x डिस्टेंस दूरी पे निकालते हैं, तब यहां भी वही है कि देखो ये हमारी एक्सिस है, x इस पे p पॉइंट है और x डिस्टेंस दूरी पे हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे वो सिर्फ एलिमेंटल रिंग के लिए निकालेंगे, इस एलिमेंटल रिंग के लिए, ठीक है। अब सुनो, जब इसमें करंट था आई वो पूरे के लिए था, इसमें करंट तो बहुत होगा ना, इसके करंट को इस वाले फॉर्मूला के करंट में मान रहा हूं आई डैश, ठीक है। आई डैश मैं सपोज कर ले रहा हूं इसके करंट को, ठीक है। इसके अंदर जो करंट है उसको मैंने सपोज कर लिया आई डैश, ठीक है। अब देखो हम लोग निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे, मैं यहां लिख रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड एट पी, इस पॉइंट पे पी पे एट पी ड्यू टू एलिमेंटल रिंग dx। कोई एलिमेंटल रिंग हमारी dx है, उसकी वजह से हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड p पॉइंट पे कितनी होगी, क्लियर है। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख दो ये वाला। तो देखो छोटे पार्ट के लिए क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई डैश जो इसके लिए करंट मैंने माना आई डैश आर स्क्वायर, आई डैश किसके लिए माना है, जो एलिमेंटल रिंग के अंदर में जो करंट होगा, आई डैश आर स्क्वायर अपॉन में 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3/2। कोई प्रॉब्लम, छोटे एलिमेंटल रिंग के लिए पी पॉइंट पे जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी ये होगी म्यू नॉट आई डैश आर स्क्वायर अपॉन में 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आई डैश क्या है, एलिमेंटल रिंग के अंदर का करंट है, ये एलिमेंटल रिंग के अंदर का करंट है। अब देखो कि आई डैश को मैं रिमूव कैसे करेंगे, सपोज एक यूनिट लेंथ में, सपोज इन 1 यूनिट लेंथ इफ वी हैव n टर्न्स, अगर एक यूनिट लेंथ में एक टर्न है, आप ही बताओ dx लेंथ में कितने टर्न होंगे, ये होंगे हमारे टोटल n dx टर्न। मैं आई डैश को रिमूव करने की कोशिश कर रहा हूं तो उसके लिए यूज कर रहे हैं। 1 यूनिट लेंथ के लिए कितना होगा, n टर्न्स होगा। n का मतलब होता है क्या होता है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ के लिए n टर्न्स होंगे, तो dx लेंथ के लिए कितने होंगे, n dx टर्न्स होंगे। ठीक उसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि एक करंट इन 1 टर्न, अगर एक करंट, देखिए मैं यहां लिख रहा हूं करंट इन 1 टर्न, अगर एक टर्न में ये वाले में टोटल जो हमारा करंट है वो I है, करंट इन 1 टर्न कितना है, I है। तो आप ही बताओ करंट इन dx टर्न, बताओ एक टर्न में करंट I है, तो करंट इन dx टर्न मतलब कि dx टर्न में करंट कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा n dx I। इतने टर्न हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे आप ही बताओ। करंट इन 1 टर्न हमारा कितना है, I है, तो करंट इन dx टर्न कितना हो जाएगा, उसके अंदर में क्या हो जाएगा, n dx I, क्या हो जाएगा, n dx I। तो कहने का मतलब है यहां से I डैश की वैल्यू जो आ जाएगी, I डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, n dx I।
ठीक है, अब इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, आप चाहो इसको लिख लेना अपने नोट इसमें रफ कॉपी में, या फिर जहां पे आप इसको प्रूफ करोगे साइड में लिख लेना ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, आप देखो कि इस फार्मूले में हम लोग पुटअप करेंगे आई डैश की जगह वो वैल्यू पुटअप करेंगे, तो क्या आएगा ये म्यू नोड एन dx i r स्क्वायर अपॉन में 2 r स्क्वायर प्लस x 3/2। एनी प्रॉब्लम? यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है। अब देखो इस एलिमेंटल रिंग की वजह से P पॉइंट पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड ये आया है। एलिमेंटल रिंग की वजह से P पॉइंट पे हमारा क्या आया, मैग्नेटिक फील्ड ये आया म्यू नोड एन dx i r स्क्वायर अपॉन में 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2। r क्या है हमारा, रेडियस ऑफ सोलेनोइड जिस पे हम लोग रखा है उसको। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इस बात को समझिएगा, यहां से बात को एकदम ध्यान समझिए। देखो ये तो हमारे छोटे पार्ट के लिए आई है, अगर पूरे पार्ट के लिए चाहिए मेरे को तो क्या करेंगे, इसके बाद आप लिखना इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेट करेंगे तो सवाल ये होता है कि इसको हम लोग किसके टर्म में लेंगे, तो हम चाहते क्या हैं कि देखो एलिमेंटल पार्ट जो है वो बेस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो मैं चाहता क्या हूं, एक एंगल यहां पे बना दूं इस एंड पे। इस एंड का एंगल मतलब है कि यहां से लेके देखो इस एक्सिस से लेके यहां तक जो एंगल हमारा है वो है θ1। दिख रहा है, क्लियर है? हमेशा यहां से लेते हैं, जहां एंगल बनाएंगे इस एक्सिस से लेंगे यहां तक, इसको मैंने मान लिया θ1। अब देखो आप, और इसकी एक लिमिट यहां है, एक कॉर्नर यहां है, एक यहां है, तो मैं यहां से एक पॉइंट वहां ले लेता हूं। अब ये जो एंगल बना रहा है बेस के साथ ये भी बना रहा है हमारा θ2। देखो ये जो एंगल बन रहा है ये हमारा एंगल है θ2, और दोनों डायरेक्शन एक ही तरफ है, θ1 और θ2 दोनों का डायरेक्शन क्या एक ही तरफ है। डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, अगर θ1 और θ2 दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो नेगेटिव आएगा, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो ऐड होगा। तो यहां से लेके यहां तक एंगल को θ1 सपोज किया, ये एंगल को ये, मतलब यहां तक जो यहां पर जो पॉइंट जो बना रहा है एंगल बना रहा है बेस के साथ θ2 है, और यहां पर जो बना रहा है वो क्या है θ1 है। क्लियर है? अब इसमें एक बात और ध्यान दे दो, अगर हमसे पूछेगा या फिर फिगर में समझ लो, इसमें एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका डायरेक्शन क्या होगा, एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, देखो इसमें डायरेक्शन इनवर्स की तरफ था, यहां पे डायरेक्शन जो हमारा होगा अंदर की तरफ होगा, अंदर में इधर में डायरेक्शन हमारा किसका होगा, डीबी का होगा। डीबी मतलब पूरे मैग्नेटिक फील्ड का होगा, इस डायरेक्शन में होगा। कैसे इस्तेमाल करेंगे सर, आप राइट हैंड पाम रूल लगा के देख लेना, फील करना उसको, जिधर करंट जाएगा उधर थंब। ठीक है, मैं सिर्फ बता दिया कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होगा इधर होगा। एंगल समझ में आ रहा है? अब देखो इसका मतलब ये है कि इस वेरिएबल को वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग इन थीटा, हम लोग थीटा के फॉर्म में इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। हम इसको लिमिट रख रहे हैं, यहां से देखो लोअर लिमिट θ2 है, अपर लिमिट θ1। मैं यहां लिख रहा हूं θ2 से θ1। कोई प्रॉब्लम? एंगल कैसे सपोज किया उसको ध्यान से देख लिया आपने, θ2 से θ1। अब ये देखो कि और भी तो एक फिक्स भी हमारा है, तो मैं क्या चाहता हूं कि ये सब रिमूव हो जाए। तो इसको रिमूव करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं पहले लगा दूं इस वाले में, इस ट्रायंगल में लगा दूं tan थीटा। तो tan थीटा कितना होता है भैया, p/b होता है। तो p क्या है, ये p कितना r है, r/x। एनी प्रॉब्लम? p/b हो गया, x को यहां लेके आ जाओ, ये हो जाएगा x = r/tan थीटा। ठीक है, अब देखो 1/tan थीटा हमारा cot थीटा होता है, तो यहां से x की वैल्यू आ गई r cot थीटा। x की वैल्यू किसका टर्म में आ गई, थीटा का टर्म में आ गई। एनी प्रॉब्लम? अब देखो आप, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो dx मिल जाएगा यहां से हम लोगों को dx/d थीटा। x को थीटा का टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो आप बताओ cot थीटा का डिफरेंशियल क्या होता है, cot थीटा का डिफरेंशियल होता है -cos स्क्वायर थीटा। तो लिख दो मैं -r cosec स्क्वायर थीटा। दिख रहा नहीं वैल्यू? हाँ दिख रहा है, ठीक। देखो जब मैंने डिफरेंशियल क्या गया dx/d = -r cosec स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, यहां से dx की वैल्यू हमारी आ जाएगी dx = -r cosec स्क्वायर थीटा और d थीटा। हम लोगों को x की वैल्यू मिल गई और dx की वैल्यू मिल गई। एनी प्रॉब्लम? बोलिए। अब हम क्या करेंगे, ये x और ये dx की वैल्यू पुट अप करेंगे इस वाले इक्वेशन में। कोई दिक्कत है? नहीं। देखो क्या करो आप, इंटीग्रेशन θ2 से θ1। ठीक है, म्यू नोड,
जो चीज कांस्टेंट उसको बाहर ले लो, मैं n को बाहर ले रहा हूं, म्यू नॉट n dx की वैल्यू रख रहा हूं, तो dx वैल्यू क्या है माइनस r कोसेक स्क्वायर थीटा और यहां पे d थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। मैंने रख दिया dx वैल्यू, बाहर में क्या है i है और बाद में क्या है r स्क्वायर है। कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं होगी। अब देखो 2r स्क्वायर प्लस इस x स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू रख दो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे r स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 3/2। एनी प्रॉब्लम बोलो नहीं। अब देखो कि इसमें क्या हमारा माइनस है, तो एक काम करते हैं हम माइनस को बाहर ले लेते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा, ये तो बचेगा b। देखो ये आएगा θ2 से θ1। एनी प्रॉब्लम, θ2 से लेके हमारे θ1 की वैल्यू है। अब देखो इस माइनस को मैं बाहर ले लिया, यहाँ बचेगा म्यू नॉट n, ये r और ये r कितना हो जाएगा, r की पावर 3 हो जाएगा, r की पावर 3, ठीक है। यहाँ हमारा क्या जाएगा बताओ, यहाँ रहेगा कोसेक स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। अब हम साथ में बचेगा i, यही तो बचेगा। अब नीचे में कुछ बचेगा, देखो नीचे में ध्यान से देखना, इस दोनों टर्म में हमारा कॉमन क्या आएगा, r स्क्वायर कॉमन आएगा, कॉमन क्या आएगा r स्क्वायर। अब ये देखो अगर r स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, तो यहां पे बचे, मैं लिख कर दे रहा हूं 2r स्क्वायर, यहां बचेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 3/2। ये 3/2 इसके लिए भी होगा, 3/2 इसके लिए भी होगा ना, यस और नो, इसके लिए भी होगा उसके लिए भी होगा। अब देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हमारा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हमारा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे यह जाएगा माइनस θ2 से θ1 म्यू नॉट n r की पावर 3 कोसेक स्क्वायर थीटा d थीटा i, ठीक है। अब देखो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा, यहां से वैल्यू आ जाएगी 2r की पावर 3 आ जाएगी, 2r की तरह। अब यहां देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा में आता जाएगा, तो यहां स्क्वायर देखो इससे ये स्क्वायर कट जाएगा, n2 में 3/2, इसे भी 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना जाएगा 3, यहां से मारा जाएगा, इस पे नहीं भैया तो सही। देखो नीचे वाले 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये क्या है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर थीटा यहां से वैल्यू आ जाएगी हमारी कोसेक की पावर 3 थीटा d थीटा, नहीं ठीक है, ये बचेगी वैल्यू, साफ दिख रहा है। यहां तो नोट करो, उसके बाद मैं क्या करता हूं, स्पेस बनाने के लिए इसको इरेज कर देता हूं, यहां पे कर दूं, कर देता हूं। देखो यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो वैल्यू यहां पर कट रही है, काट देखो ये r3 और ये r3 क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। अब ये देखो पूरा कोसेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा, यस और नो, कटेगा नहीं कटेगा। अब देखो यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा माइनस θ2 से θ1, यहां बचेगा म्यू नॉट n और यहां क्या बचेगा बताओ d थीटा i, ये बचेगा म्यू नॉट d थीटा i। अब देखो यहां पे कोसेक थीटा नीचे में, तो 1 अपॉन कोसेक थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है। मैं इस तरीके से लिख रहा हूं sin थीटा d थीटा i, ये जो बचा ना कोसेक थीटा, तो 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है sin थीटा, मैंने लिख दिया। अब नीचे सिर्फ क्या बचेगा बताओ, नीचे क्या बचेगा, नीचे सिर्फ बचेगा 2, नीचे बचा 2। यहां तक कोई दिक्कत बताओ, यहां तक कोई प्रॉब्लम है, देख लो मैंने कुछ नहीं किया, वैल्यू पुट अप किया है। अब देखो कि इसमें कांस्टेंट क्या क्या चीज है, जो चीज कांस्टेंट उसको बाहर ले लो, तो कांस्टेंट हमारा क्या क्या भैया, म्यू नॉट कांस्टेंट है, और क्या कांस्टेंट, n कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, और कौन कांस्टेंट है, i कांस्टेंट को बाहर ले लो। अब देखो sin थीटा और d थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos थीटा, लिमिट θ2 से θ1, ठीक है। और नीचे में क्या आएगा 2। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहां बचेगा म्यू नॉट ni अपॉन 2, अपर लिमिट रखोगे तो हो जाएगा ये cos θ1 माइनस cos θ2। ये हमारे आ गई मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, किसके लिए, फिनाइट सोलेनोइड का केस हो और इनसाइड निकालें तो हमारी वैल्यू आएगी मैग्नेटिक फील्ड की ये, ठीक है। कैसे किया सर, तो हम लोगों ने पहले लिया dB, छोटे पार्ट के इतना आ गया, i डैश हम लोगों ने निकाला क्या, n dx i की वैल्यू यहां पुट अप कर दी, ये i वैल्यू। फिर मैंने देखा इसको लिमिट कहां से कहां रखा, θ2 से θ1 रख दिया मैंने। अब देखो मेरे को θ2 और θ1 का टर्म इंटीग्रेट करना है, तो मैं चाहता हूं dx रिमूव हो जाए और x रिमूव हो जाए, उसके लिए मैंने हेल्प लिया tan थीटा का p/b।
x की वैल्यू और dx की वैल्यू यहां पुट अप कर दी, फिर सिंपली तरीके से सोल्व करते चले गए, हमारी वैल्यू आ गई म्यू नॉट ni अपॉन 2 cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये हमारा है नेट मैग्नेटिक फील्ड। ये किसके लिए है? नेट, ये हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड का निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसको नोट डाउन कर लो आप। ठीक है, अब देखो मैं पढ़ूंगा किसके लिए? इनफाइनाइट सोलेनॉइड। इनफाइनाइट जब लेंथ का सोलेनॉइड रहेगा तो कैसे निकालेंगे हम? बस इस फॉर्मूले को रख देते हैं, बाकी सबको इरेज कर देते हैं। अब देखो, जब हमारा इनफाइनाइट सोलेनॉइड रहेगा, इनफाइनाइट लेंथ, देखो अब ये ही आता है हमारे एग्जाम में, इसको याद करना है आपको। ये तो कॉन्सेप्ट बनाने की सिखाया मैंने, इनफाइनाइट सोलेनॉइड, ठीक है। जब इनफाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड हो और उसमें लेंथ कैसी हो? इनफाइनाइट बोलते हैं इसको, आइडियल बोलते हैं, आइडियल सोलेनॉइड। आइडियल सोलेनॉइड बोलते हैं किसको? जिसके अंदर में इनफाइनाइट लेंथ हो। अब समझिए इस बात को कि आइडियल सोलेनॉइड में क्या होता है, जो n होता है, n वो वेरी वेरी हाई होता है, बहुत ज्यादा होता है, वेरी वेरी हाई होता है। किसमें? आइडियल सोलेनॉइड में। आइडियल सोलेनॉइड का मतलब क्या है? जिसमें लेंथ क्या हो? इनफाइनाइट हो। तो अगर इनफाइनाइट का मतलब क्या है? अगर मैं, ये हमारी लेंथ है, अगर ये लेंथ मान लो, अगर ये लेंथ हमारी सोलेनॉइड की 1 मीटर की भी है ना, 1 मीटर की, 1 मीटर की है, अगर लेंथ मान लो 1 मीटर है और रेडियस मान लो आप 1 mm है, तो फिजिक्स में इनफाइनाइट का मतलब होता है, क्या होता है? इनफाइनाइट का मतलब होता है एक रिलेटिव टर्म है। ये कहने का मतलब क्या है कि जो एल होना चाहिए, एल वो बहुत बड़ा होना चाहिए। किसे कंपैरिजन? रेडियस कंपैरिजन में। अगर लेंथ हमारा 1 मीटर है और रेडियस 1 mm है, तो ये मान लो किसका कैसा? ये इनफाइनाइट का है। अब देखो, अगर मैं रियल लाइफ में देखूं तो इस दोनों के बीच में तो कोई एक्सिस ही नहीं बन पाएगी, ये दोनों बिल्कुल चिपका सा लगेगा। फिर भी मैं समझाने के लिए ये दिखा दे, ये हमारी एक्सिस है, इनफाइनाइट लेंथ के बीच का एक्सिस है, ये पॉइंट P है। अब देखो, इस पॉइंट P पे हम लोगों को निकालना है क्या? मैग्नेटिक फील्ड। ये तो निकाला था फिनाइट लेंथ के लिए, अब निकालना है इनफाइनाइट लेंथ के लिए। जब आइडियल सोलेनॉइड है तब मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी? तो आप देखो, जब इस पॉइंट से हम लोग इंड वाले पे निकालेंगे, इंड वाले पे देख लो, जो थीटा 1 होगा वो टेंड्स करेगा ऑलमोस्ट 180 को। जैसे कोई ऐसा लाइन है, ये ऐसे लाइन में जा रही है, तो ऑलमोस्ट वो कितने को टेंड्स करेगी? 180 डिग्री को। और जो थीटा 2 होगा वो लगभग किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। समझ आ रही बात? नहीं आ रही है? टेंड्स करेगा। अब क्या करो आप? इसमें वैल्यू पुट अप कर दो, b इज इक्वल टू म्यू नॉट ni अपॉन 2 cos थीटा 1, cos 180 माइनस cos 0। ठीक है, यहां से वैल्यू क्या कितनी आ गई? म्यू नॉट ni अपॉन 2, और cos 180 वैल्यू कितनी होती है? cos 180 वैल्यू होती है -1 और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो कितना आ गया? -1। तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई? माइनस माइनस कितनी हो गई? 2। कितनी हो गई? माइनस माइनस कितनी हो गई? 2। अब 2 से 2 कट जाएगा, यहां से वैल्यू हमारी आ गई माइनस म्यू नॉट ni, b की वैल्यू आ गई। देखो, नेगेटिव का मतलब क्या? ये डायरेक्शन बताता हूं लोगों को। जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ये वैल्यू आएगी म्यू नॉट ni। इसको आप लर्न करके रखना। इनफाइनाइट सोलेनॉइड के लिए मैग्नीट्यूड निकालने का, सॉरी, जो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला है म्यू नॉट ni होता है, और जो एंगल होता है थीटा 1 180 के करीब पहुंचता है और थीटा 2 0 के करीब पहुंचता है। ठीक है, अब याद रखना, ऑन द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, ये किसकी वैल्यू है? ऑन द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड एंड इनसाइड ए सोलेनॉइड। इनफाइनाइट में कैसा? ऑन द एक्सिस है और इनसाइड ए सोलेनॉइड है। और ये कैसे होगी? यूनिफॉर्म एंड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। ये यूनिफॉर्म होगी और पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड होगी। ठीक है, अब देखो, अगर हमसे इस पॉइंट पे पूछ लेगा, इस पॉइंट पे भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही होगी, इस पॉइंट पे नहीं होगी। लेकिन जब हमसे पूछ देगा एज पे, इस पे बताओ कि यहाँ पे इनफाइनाइट लेंथ वाले सोलेनॉइड के केस में हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? याद रखना, उसकी वैल्यू हमारी होगी b इज इक्वल टू म्यू नॉट ni अपॉन 2 एज पे, एट एज। यहां तक भी निकालोगे तो b की वैल्यू यही आएगी, जहां एज पे चलेगा, यहां या फिर यहां, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला आएगा आइडियल सोलेनॉइड में होगा म्यू नॉट ni अपॉन 2। ठीक है, अब याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड एंड आइडियल मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड इन एन आइडियल सोलेनॉइड इज नियरली 0। जो आइडियल सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड होती है
वो नियरली जीरो होती है, और हम लोगों का असम्पशन होता है कि जो बी आउटसाइड होगा, बी आउटसाइड वो जीरो के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। क्लियर है? ये समझ में आ गया? इसको आप नोट कर लीजिए, इसको लिख लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा। एट एग्जैक्ट इन एट एज, किनारे पे जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू होगी म्यू नॉट Ni अपॉन 2 आइडियल सोलेनोइड के लिए, और मैग्नीट्यूड म्यू नॉट Ni, और फिनाइट लेंथ के लिए म्यू नॉट Ni अपॉन 2 cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ठीक है? अब देखो जो हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, जो आप देखोगे अपनी बुक्स खोल के देखना कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आइडियल सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी आइडियल सोलेनोइड के लिए? देखो कुछ इस तरीके से होगी। मैं आप इतना गैप होता नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए, ठीक है, इतना बड़ा गैप ले रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आइडियल सोलेनोइड, आइडियल सोलेनोइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी? तो देखिए ना, यहां से करंट बाहर निकल रहा है, यहां से करंट बाहर निकल रहा है, सॉरी यहां अंदर आ रहा है। ठीक है, तो जो इसमें क्या होता है, करंट होता है वो पैरेलल होगा। जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा? पैरेलल होगा। इनफाइनाइट लेंथ हो, आइडियल सोलेनोइड हो, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी स्ट्रेट होगी और पैरेलल होगी और इक्विडिस्टेंट होगी। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या बोलता है? स्ट्रेट होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए और इक्विडिस्टेंट, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में रेजिस्टेंस बराबर होना चाहिए। ऐसी चीज को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म। ठीक है, और इसके बाहर अगर हमसे पूछेगा तो ये हमारा अजम्पशन होता है जीरो होती है मैग्नेटिक फील्ड, नियरली जीरो के बराबर कुछ कुछ होती है, पर हम लोगों का अजम्पशन होता है फिजिक्स में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड आइडियल सोलेनोइड इज जीरो। ठीक है, तो देखो ये तो जेईई मेंस नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए था, ये डिराइव कैसे होता है, इस पर काफी क्वेश्चन आता है। ये वाले पे आइडियल सोलेनोइड के लिए इनफाइनाइट अगर लेंथ है तो हमारा फार्मूला होता है म्यू नॉट Ni, और अगर एज पर बोल रहा है तो म्यू नॉट Ni अपॉन 2। क्लियर है? इनफाइनाइट का मतलब होता है क्या फिजिक्स में? एक ये रिलेटिव टर्म है, कंपैरेटिव टर्म है। अगर लेंथ हमारा 1 मीटर है, रेडियस 1 mm है, तो 1 मीटर के कंपैरिजन में 1 mm बहुत छोटा होता है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट लेंथ। इनफाइनाइट मतलब नहीं कि बहुत दिखता नहीं हम लोगों को, ये हम लोगों के दिमाग में शॉर्ट होता है, पर ऐसा नहीं होता है। ये एक कंपैरेटिव टर्म है, रिलेटिव टर्म है। अब हम आते हैं बोर्ड के टॉपिक पे। बोर्ड के टॉपिक हमारी क्या कहती है? जल्दी से हम आते हैं बोर्ड के टॉपिक पे। क्या बोर्ड? अब इसी वैल्यू को निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे ऑफ एन आइडियल सोलेनोइड यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ। वी विल कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एम्पियर सर्किटल लॉ। देखिए ये जो हमारा है यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, ये बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वो तो नीट और जेईई के लिए था। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एन आइडियल सोलेनोइड, लेंथ इनफाइनाइट होना चाहिए यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिए इसमें अजम्पशंस कुछ है, ये अजम्पशन आपको मान के चलना है, याद करके चलना है इसको। ठीक है, क्या अजम्पशन है सर? मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड सोलेनोइड इज जीरो, सोलेनोइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है जीरो है। पहला, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड सोलेनोइड आर स्ट्रेट एंड पैरेलल टू एक्सिस ऑफ सोलेनोइड एंड यूनिफॉर्म इन नेचर। ये जो है वो सोलेनोइड के जो क्या होगी? पैरेलल होगी। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो सोलेनोइड की क्या होगी? पैरेलल होगी, स्ट्रेट होगी और यूनिफॉर्म इन नेचर होगी। और आइडियल सोलेनोइड में 2 पॉइंट मान के चलिएगा, जो एल होगा, एल, ये जो एल होगा, ये जो लेंथ एल होगा, वो दैट शुड बी वेरी वेरी लार्ज। किससे बड़ा होना चाहिए? रेडियस से बड़ा होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए। और एल शुड बी वेरी वेरी हाई। ये 2 पॉइंट जो है वो इसको क्या बनाता है हम लोगों को? ये बनाता है आइडियल सोलेनोइड। आइडियल सोलेनोइड के लिए हमारे 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यू हैव टू कीप इन माइंड द assumptions। ये 4 पॉइंट है। आउटसाइड सोलेनोइड जीरो होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड सोलेनोइड आर स्ट्रेट एंड पैरेलल टू एक्सिस ऑफ सोलेनोइड एंड यूनिफॉर्म इन नेचर। ठीक है, ये 2 पॉइंट आइडियल सोलेनोइड का स्पेशल केस है। ठीक है, अब ये देखो मैंने दिखा दिया सोलेनोइड, यहां से करंट बाहर आ रहा है और यहां करंट अंदर जा रहा है। ये हमारी एक एक्सिस है, इस एक्सिस के ऊपर में कोई पॉइंट P है जहां पे हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ। आप लिख लेना इसके बाद, एट P वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। एट P वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मतलब B, वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। तो एम्पियर्स लूप लगाने के लिए पहली कंडीशन है कि सबसे पहले जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है
उस पॉइंट को काटते हुए आप एक क्लोज लूप बनाओ। फिर से मैं बोल रहा हूं, एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई करने के लिए जिस पॉइंट पे हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, उस पॉइंट को काटते हुए हम लोगों को एक क्या बनाना है, लूप बनाना है। तो देखो जो इसका लूप बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, रेक्टेंगल के फॉर्म मान लेते हैं। ये जो लूप है वो किसको पी पॉइंट करते हुए किस कहां पे, अब देखो ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये रेक्टेंगल के शेप में है। अगर ये लेंथ एल मान रहे हैं हम, ये भी हमारी क्या होगी, एल होगी। ठीक है, अब इसमें एक बात और लिखिएगा इसमें थ्योरी के रूप में कि जो हमारा एबीसीडी है, एबीसीडी इज ए एम्पियर्स लूप, एबीसीडी इज ए एम्पियर्स लूप। ये जो लूप बना है वो कौन सा लूप है, एम्पियर्स लूप। एबीसीडी इज हमारे एम्पियर लूप। अब याद रखना नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमारा है स्मॉल एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या है, स्मॉल एन है। और एक बात देखिएगा, जो करंट है आई है एक टर्म में, एक रिंग के अंदर में जो करंट हमारा आई है। अब आप लिखना यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला क्या होता है भैया, याद है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। ठीक है, देखना पड़ेगा भैया मेरा कैमरा चल रहा है नहीं चल रहा है, चलो ठीक है, थैंक्स गॉड कैमरा चल रहा है। देखो इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। तो देखो एम्पियर सर्किटल लॉ में हम लोग जो इंटीग्रेशन करते हैं वो लाइन इंटीग्रल होता है। क्या होता है, लाइन इंटीग्रल होता है, लेंथ वाइज होता है। जो हम लोग थ्रेड घुमाते हैं, वायर घुमाते हैं, उसके वाइज होता है, एरिया वाइज नहीं होता, एरिया वाइज गॉस लॉ में होता है। तो जो हम लोगों को इंटीग्रेशन करना किसका करना है, एबीसीडी का, एबीसीडी क्लोज लूप है। अब एरिया का नहीं करते तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल पहले करेंगे ए बी का, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी सी कहां, बी डी एल, फिर करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कहां करेंगे, सी डी ए, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल डी ए का। ये किसके बराबर होगा, म्यू नॉट आई इनसाइड। ठीक है, लेंथ वाइज करेंगे, ए बी करेंगे, बी सी करेंगे, सी डी करेंगे। और अब ये देखो आप ए बी कहां है, ए बी हमारा सोलोनॉइड के बाहर है। तो सोलोनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है, ये हमारा असम्पशन ही है, देख लो। दूसरा देखो हम कहां है, बीसी है, बीसी। अब देखो बीसी में, बीसी जो है इसमें मैग्नेटिक फील्ड और डीएल, बीसी वाले में मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो जब इसको आप ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, बी डी एल कॉस थीटा, कॉस 90 कितना होता है, 0, ये भी 0 आ जाएगा। अब देखो सी डी कहां है, इसकी वजह से मिलेगा क्योंकि लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, इसकी वजह से मिलेगा। अभी मैं सिर्फ इसको ऐसे ही लिख देते हैं, बी डॉट डी एल सी डी। अब इसकी वजह से 0 होगा, देखो कैसे, डी ए लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, एंगल बनेगा 90, cos 90 होता है 0, इसकी वैल्यू 0। इसका मतलब है जो हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से मिल रही है, सीडी की वजह से। ठीक है, ऊपर मिटा दे, चलो मिटा देता हूं ऊपर। ठीक है, मैं मिटा दे रहा हूं, आप लोग पॉज करके बीच में लिख लिया कीजिए। ठीक है, अब देखो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे बी तो बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। अब सवाल ये होता है कि अंदर में हमारा करंट क्या होगा, बोलो, अंदर में हमारा करंट कितना होगा, बी को बाहर ले, ठीक है, या फिर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको, तो कैसे कि इस वाले में एंगल कितना बनना भैया, डीएल इस डायरेक्शन में है और ये, तो हमारा लिख दे रहा है यहां पे बी डी एल कॉस 180 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। ठीक है, ये हमारी वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कि बी डी एल ये हमारा कॉस 90 कितना होता है, -1 होता है, तो यहां से माइनस बी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा डीएल का इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। ठीक है, क्लियर है ये। अब देखो डीएल का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, यहां से आ गया माइनस बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। अब सवाल ये है कि आई इनसाइड कितना होगा, आई इनसाइड के लिए वही काम करेंगे। फिर एक लेंथ में कितना टर्न होता है, एन टर्न्स है, एन लेंथ में कितना होगा, एन एल टर्न्स होगा। ठीक है, एक टर्न में कितना करंट है, आई करंट है, तो एन एल टर्न में कितना होगा, करंट होगा। तो कहने का मतलब ये है
कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी किसकी, आई की जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी एन एल आई, ये एल से एल कट जाएगा, बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी आ गया हमारा माइनस म्यू नोट एन आई। ठीक है, ये वैल्यू हमारी आ गई। अब इसका मोड लगा दो, म्यू नोट एन आई। एम्पियर सर्किट लॉ से वैल्यू यही आ रही है और हम लोगों का जनरल तरीके से वैल्यू ये आई थी, याद रखिएगा। मोड बी इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई। ये कैसे आया, आई इनसाइड की वैल्यू आई। किसकी वैल्यू आई है, आई इनसाइड की वैल्यू इतनी है। कैसे, एक लेंथ में एन टर्न, एल लेंथ में कितना हो जाएगा, एन एल टर्न हो जाएगा। ठीक है, एक टर्न में कितना करंट होगा, आई करंट होगा। तब हमारे इसमें क्या नाम है, जब एल टर्न होगा तो कितना करंट हो जाएगा, एन एल आई, ये हमारा होगा आई इनसाइड। अब आई इनसाइड रिमूव कर दिया, वैल्यू रख दिया एन एल आई, एल से एल कर दिया, हमारी वैल्यू किसकी आ गई, मैग्नेटिक फील्ड की आ गई। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आप इसको आराम आराम से, अगर मेरा लेक्चर बहुत फास्ट लग रहा है आप लोगों को तो प्लीज यूट्यूब के अंदर में ऑप्शंस होता है, आप आई ब्लैंक पे जाइएगा, वहां पे ऑप्शन आएगा। आप अगर 1 का स्पीड नॉर्मल ज्यादा है 0.75 कर लीजिएगा, स्पीड कम बेसी आप कर सकते हैं। ठीक है, स्पीड इश्यू नहीं है, आपको यूट्यूब ने कम बेसी करने का, फास्ट और स्लो करने का ऑप्शन दिया है। ठीक है, आप कंसेप्ट को पकड़ो, मेन पॉइंट पकड़ना और इसको ड्राइव करना। बोर्ड वाले बच्चे तो उसको कर ही लेंगे। ठीक है, जहां पे जीरो हुआ है बाहर में जीरो, और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ परपेंडिकुलर वहां पे जीरो होगा। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे टोरॉइड। ठीक है, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।